ठीक, चलो। कोणी बोलू शकतं का? ओके, चलो। ओके, सृष्टी म्हणू शकता मॅडम? ओके, चलो. हॅलो सर. हाँ, बोला. सर माझ्याकडे कॅमेरा नाही आहे, आज मी पीसीवर आहे. नाउ यू कॅन स्टार्ट युअर व्हिडिओ. सर पण मी पीसीवर आहे आज, मी कॅमेरा नाही ऑन ओके, करू चलो, शकत. कोई बात नहीं, चलो. फाइलम पोरीफेरा, सायकॉन स्कायफा, स्पॉन्जिला, फ्रेशवॉटर स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज. फाइलम सिलेंटरेटा, फाइसेलिया पोर्तुगीज मैनोफोर, एडम्सिया सियानेमॉन, पेनेटुला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मियांड्रेना ब्रेन कोरल, ऑरेलिया जेलीफिश, ओबेलिया पोयम, हाइड्रा. फाइलम टिनोफोरा, प्लूरोब्रैकिया, टिनोप्लाना. फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, टिनिया टेपवर्म, फैसियोला लिवरफ्लूक, प्लानेरिया रीजनरेशन. Phylum Ascahelminthes, Ascaris roundworm, Wuchereria filaria worm, Ankylostoma hookworm. Phylum Annelida, Nereis dioecious, Ferretima earthworm, Hirudinaria blood-sucking leech. Phylum Arthropoda, economically important insects, Apis honeybee, Bombyx silkworm, Laccifer lac insect. Vectors, Anopheles malaria, Culex filariasis, Culex japanese encephalitis, Aedes dengue, Aedes chikungunya, Aedes yellow fever. Gregarious pest, Locusta locus, living fossil, Limulus king crab. Phylum Mollusca, Paella, apple snail, Pinctada, pearl oyster, Sepia, cuttlefish, Loligo squared, Loligo squared, octopus, devilfish, Aplysia sea hare, Dentalium tuskshell, Chitopleura chiton. Phylum Echinodermata, Asteria starfish, Echinus sea urchin, Antedon sea lily, Cucumeria sea cucumber, Ophiura beetle star. Phylum Hemichordata, Balanoglossus, Saccoglossus, Phylum Chordata, Subphylum Urochordata, Ascidia, Salpa, Doliolum, Subphylum Cephalochordata, Branchiostoma, Amphioxus or lion slate, Subphylum Vertebrata, class Cyclostomata, Petromazon lamprey, mixin hagfish, class Chondrichthyes, Scalidon dogfish, Prestis sawfish, Carcharodon great white shark, Trigon stingray, Torpedo electric ray, class Ostichthyes, marine fishes, Exocetus, flying fish, hippocampus, sea horse, freshwater fishes, Labio, rohu, catla, cutla, Larius, magur, aquarium fishes, betta, fighting fish, Pterophyllum, angelfish, class Amphibia, Bufo, toad, rana, frog, hyla, tree frog, Salamandra, salamander, Ichthyophis, limbless amphibia, class Reptilia, Chilon, turtle, testudo, tortoise, chameleon, tree lizard, calotes, garden lizard, crocodilus, crocodile, alligator, alligator, hemidactylus, wall lizard, poisonous snakes, Najja, cobra, Bengarus, crate, vipera, viper, class aves, Corvus, crow, Columba, pigeon, Psittacula, parrot, Struthio, ostrich, pao, peacock, Aptondines, penguin, neophron, vulture, class Mammalia, oviparous mammals, Ornithorhynchus platypus, viviparous mammals, Macropus, kangaroo, Pteropus, flying fox, Camelus, camel, Macaca, monkey, Ratus, rat, Canis, dog, Felis, cat, Elephas, elephant,
Equus horse, Delphinus common dolphin, Beloptera blue whale, Panthera tigris tiger, Panthera leo lion. Thank you. थैंक यू सो मच सृष्टि इंगड़े, थैंक यू सो मच। बेटा आप कहाँ से हो? औरंगाबाद सर। औरंगाबाद। और स्कूल आपका? पोदार इंटरनेशनल ICSC। पोद्दार इंटरनेशनल ICSC। बहुत ही बढ़िया। सृष्टि ने जिस अंदाज से किंगडम एनिमलिया के एग्जाम्पल रिवाइज किए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू सो मच बेटा सृष्टि, थैंक यू। Thank you sir. ओके, वेलकम। नाउ दोस्तों, आज मी तुमच्या समोर एक लेजेंडरी टीचरला इंट्रोड्यूस करणार आहे, बाळकृष्ण काटे सर। ओके, त्यांच्याबद्दल थोडस इंट्रोडक्शन देईल। मागच्या 39 वर्षापासून सर शिकवत आहेत बायोलॉजी। ओके, आणि आजही ते चिरतरुण आहेत, मनाने तुमच्याच वयाचे आहेत। तुम्हाला ते जाणवणार पण नाही सर शिकवताना। आणि सर आपल्या सोबत जॉईन झालेले आहेत, तर त्या अगोदर एक इंट्रोडक्शन देतो मी सरांनी कसं काम केलं आहे अगोदर, कुठं कुठं शिकवलेलं आहे आणि त्यांचे स्टुडंट कोण आहेत किंवा किती मुलांना त्यांनी गाईड केलेलं आहे डॉक्टर आणि इंजिनियर बनवण्यासाठी। ओके, सरांचं एज्युकेशन जे आहे ते MSc केमिस्ट्री आहे। प्रोफेसर बाळकृष्ण प्रभाकरराव काटे, MSc केमिस्ट्री 1981 and second in Marathwada University in 1981. Now he started teaching as a career at a junior college SJ Vidyalay Daund in 1981, and then in 1982 he entered totally private coaching classes filled for 11th and 12th science student। और सर 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बहुत ही रेयर लोग हैं दुनिया में, इंडिया में दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कोई लोग हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, कोई लोग हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कुछ लोग हैं दोस्तों मेरे जैसे जो बॉटनी और जूलॉजी पढ़ाते हैं। तो सर 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और दोनों ही ओके ऑन पॉइंट पढ़ाते हैं। नाउ उनका जो टोटल एक्सपीरियंस है 39 एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में। ओके, उनके खुद के क्लासेस थे, बीड़ से उन्होंने उनकी जर्नी शुरू की थी इस टीचिंग फील्ड में सिंस 1982, और 2001 तक एज अ काटेज क्लासेस बीड़ में थे। फिर औरंगाबाद में, अगर आपको पता नहीं पर आपके जो पेरेंट्स हैं उनको पता होगा, परिपूर्ति कोचिंग क्लासेस, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम। ओके ओके, तो 1999 टू 2010 परिपूर्ति कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर थे सर। 3 लोग थे वहां पढ़ाने के लिए। फिजिक्स के लिए थे सूर्यवंशी सर, केमिस्ट्री के लिए थे इंगोले सर, और बायोलॉजी के लिए थे हमारे काटे सर। और पुणे में सिंस 2013 MK ट्यूटोरियल, ओके, MK मीन्स मंजूषा काटे उनके वाइफ का नाम है। ओके, उन्होंने उनका क्लास डेडिकेट कर दिया है तो उनके वाइफ के नाम से, तो उनके नाम से अभी वो पुणे में पढ़ाते हैं, मगरपट्टा सिटी मध्ये राहतात सर। 500+ doctor and 5,000+ engineers are working today at various places who were our student at their 11th and 12th standard, and thousands of many past students are working today in India or abroad। तो ये है दोस्तों माननीय बाळकृष्ण काटे सर। ओके, मगरपट्टा सिटी पुण्यामध्ये राहतात, मराठवाड्यामध्ये नांदेड, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड मध्ये त्यांचं वास्तव राहिलेलं आहे। गोल्ड मेडल आहेत ओके इन राइट वोकल सिंगिंग इन 81 एट यूथ फेस्टिवल ऑफ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि बोरिंग तो नहीं है, अगर सिंगिंग में कोई गोल्ड मेडल लाता है तो इसका मतलब आर्टिस्ट टाइप के टीचर है सर। मराठवाड़ा भूषण पुरस्कार मिला है उन्होंने उनको 2005 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार, डू यू नो दैट द्रोणाचार्य गुरु जो होते हैं, गुरु है अर्जुन और पांडवाज के गुरु थे द्रोणाचार्य। और किसको पता है कर्ण के गुरु कौन थे? कर्ण के गुरु कौन थे पता है आपको? कर्ण।
द्रोणाचार्य ने कहा था कि मैं कर्ण, मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, तो उन परशुराम नहीं बेटा, कृपाचार्य थे, कृपाचार्य। शायद आपको पता नहीं है, मृत्युंजय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है उन्होंने उनको 2006 में। ये है काटे सर। ओके, नाउ कुछ फेलिसिटेशन किया था उनके 5 स्टूडेंट ने। ओके, उनका और उनके जो 5 स्टूडेंट है अभी वो बहुत बड़े फिल्म एक्टर है मराठी इंडस्ट्री में, मकरंद अनासपुरे सर के स्टूडेंट है। ओके, सर से पढ़ा है उन्होंने। नाउ अवार्ड्स के बारे में बात करें तो दैट इज अ फेलिसिटेशन ऑन कंप्लीटिंग 25 years ऑफ प्राइवेट कोचिंग क्लासेस बाय पास्ट स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स in 2007 at the hand of my past student and famous actor Makarand Anaspure. Award in singing competition 2019 or 2020 held by RCPH Pune. Now सोशल वर्क भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा। अभी तो आपके पास उतना टाइम नहीं है और अभी कुछ करने की भी जरूरत नाही, पर जब हम सब एक सर्टन एज पे जाते हैं तो मराठीमध्ये म्हणतात काही देणं लागतं समाजाचं, है ना, ज्या समाजाने आपल्याला हे सगळं दिलेलं आहे त्याचं काय देणं लागतं. सो सर प्रेसिडेंट होते लायन्स क्लब बीडचे 1992 to 1993. प्रेसिडेंट अगेन संस्कार भारती बीड ड्यूरिंग 93 to 2001. डायरेक्टर थे पूर्णवादी नागरिक सहकारी बैंक बीड. फाउंडर सेक्रेटरी है गजानन सांस्कृतिक मंडल बीड. Participation in erection of Sant Gajanan Maharaj Mandir at Bid in 2001, and again president of Lions Club of Aurangabad Metro 2009 to 2010, and currently a member of Rotary Club of Pune Magarpata City. कुछ मेमोरीज, कुछ फोटोज है, 39 साल तक उन्होंने पढ़ा है। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ये मकरंद अनासपुरे हैं, ओके, सर के साथ उनके जो स्टूडेंट थे। काटेज क्लासेसच्या रौप्य महोत्सव समारंभामध्ये क्लासेसच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करताना ज्येष्ठ साहित्यिक व कवी प्रवीण दवणे, काटे सरांचा माजी विद्यार्थी मकरंद अनासपुरे आणि ज्येष्ठ स्नेही गोपाल कासट सर। ओके, ये अवार्ड देते वक्त है उनका फोटो। ये सर की फैमिली है, वाइफ है मंजूषा काटे मैडम। ओके, और काटे सरांचे जे स्टुडंट आहेत मकरंद अनासपुरे, त्यांनी काही काटे सराबद्दल अभिप्राय, काय मत मांडलेलं आहे त्यांचं, ते मी तुम्हाला वाचून दाखवतो, कदाचित तुम्हाला ते दिसणार नाहीये। ओके, समजून घ्या। काटे सर बायोलॉजी शिकवतात आणि सोबत लाईफ पण शिकवतात हा। सो काटे सराकडून घ्यायचे काय, विज्ञानाचे ज्ञान आणि सामाजिक भान। सरांनी आम्हाला समृद्ध केले ते फक्त ज्ञानानेच नव्हे तर सामाजिक भान शिकवून अत्यंत सुलभ विषय शिकवताना, त्यामुळेच क्लास कधी बुडल्याचे आठवत नाही। प्रत्येक विज्ञानाच्या विद्यार्थ्याच्या वाटेवर काटेज कोचिंग असावे असा मी मताचा आहे। 13 डिसेंबर 2007 रोजी बाळकृष्ण काटे यांच्या क्लासेसच्या रौप्य महोत्सव प्रसंगी काटे सरांचा सत्कार करताना काढलेले उद्गार। मकरंद अनासपुरे हे त्यांचे स्टुडंट आहेत। ओके, सर सिंगिंग पण करतात आणि त्यांना सन्मान पत्र मिळालेलं आहे, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा रत्न पुरस्कार मिळालेला आहे। ओके, त्या युनिव्हर्सिटी तर्फे सरांना। सर आपल्या सोबत आहेत, मी त्यांना काही शब्द बोलण्यासाठी विनंती करतो। सर तुम्ही हे जे मुलं आहेत यांचे जे स्वप्न आहेत की एम्स न्यू दिल्ली किंवा केईएम आणि तिथून पुढे USMLE हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी, जे आज माझे मित्र आहेत तिथं, ठीक आहे, त्या टॉपच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये जगभरातल्या तिथं जाण्याचे स्वप्न आहेत सर। तर प्लीज तुम्ही त्यांना गाईड करावं आणि मी एवढी श्युरिटी घेईल की सर त्यांचं बेस्ट देतील तुम्हाला। ओके, एवढा सर्व एक्सपिरियन्स, एवढा मोठा एक्सपिरियन्स त्यांचा आहे, तर ते तर बेस्ट देतीलच, नो डाऊट। सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी बोलावं, मुलांशी थोडंसं हितगुज करावं। काटे सर। Good morning, friends. Good morning all. And Good morning sir. good morning all. And Honorable Bhaskar ji, I should
a thanks to you for such a wonderful introduction you have given. It's a very high quality of any person to appreciate the work of other, and that I am finding in Bhaskarji. So he is really a very not only talented, hardworking person, but broad-minded, generous person, and for that purpose, thanks a lot. Thank you, sir. Whatever I Thank you have so much. done, whatever I have done, that is just because of my passion, I will say, right from the beginning. Teaching is my passion. When I completed my MSc in chemistry at that time, somebody was saying that you should go in some chemical industry there and try to work there. But I was not at all having that mindset. And right at that time, I decided that I should be in teaching profession. And it said that everybody, by just humor, it is said that P.L. Deshpande, Pula Deshpande म्हणतात, nobody is happy in his profession. Okay, हे एक जनरल स्टेटमेंट है विनोदी, पर मैं ये कहूंगा दैट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी and at present at the end of 39 years or almost 40 years will be getting completed on this 9th November. तो इस 40 साल में तो मैं ये समझ रहा हूँ that I am the richest person with the help of that extreme love and affection that I have got from all my past students. आता सेकंड जनरेशन माझ्याकडे येते शिकायला. या क्लासेसमध्ये सुद्धा माझे ज्या विद्यार्थिनी डॉक्टर झालेले आहेत, डॉक्टर मंगल मुळे म्हणून आहेत, त्या डॉक्टर झालेल्या आहेत आणि आता सध्या मेडिकल ऑफिसर म्हणून सायकियाट्रिस्ट म्हणून काम करतात. इव्हन इन औरंगाबाद सिटी दॅट त्यांची कन्या जी आहे ती या क्लासला आपल्या जॉईन झालेली आहे. त्यामुळे मला तो एक वेगळा आनंद मिळतो आता जस्ट व्हॉट आय एम सेइंग दॅट. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इट इज ऑलवेज ए कंप्लेंट बिटवीन द टू जनरेशन. जसं की माझ्यासारख्या जनरेशनचे लोक म्हणतील की बाबा आता पूर्वीसारखे शिक्षक राहिले नाही, हाडाचे वगैरे वगैरे. पण मी असं कधीच म्हणणार नाही. आय एम ग्रेटफुल टू गॉड. गजानन महाराजांचा मी अतिशय ऋणी आहे की भास्करजी सारखे व्यक्तिमत्व मला मिळालं. जस्ट वी आर रिसेंटली इंट्रोड्यूस ऍक्च्युअली बाय वन ऑफ माय पास्ट स्टुडंट योगेश देशमुख. अँड रिअली आय एम सरप्राइज टू सी हिज वर्क. त्यांचं व्हिजन, त्यांचं डेडिकेशन, त्यांचं जे काही एकंदरीत संपूर्ण कार्य क्लास 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 याच्याशिवाय दुसरा विषय आणि त्यातल्या त्यात नीट बायोलॉजी ह्याच्याशिवाय दुसरा विषय या सरांकडे नाहीये. अँड दॅट इज ए बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ यू माय डिअर स्टुडंट्स. आय विल से दॅट यू हॅव एंटर्ड ॲट द राईट प्लेस AIB फॉर प्रिपेरिंग बायोलॉजी. ज्यावेळेस तुम्ही टॉप स्कोर करणार आहात 720 पैकी 720 मार्क्स, ते आमचं एम आहे. बायोलॉजीमध्ये 360 पैकी 360 आणि आता कालच आपण पाहिलं की जवळपास म्हणजे जस्ट यू मस्ट बी नोईंग की महाराष्ट्रातले लोक फार कमी आहेत पहिल्या 50 मध्ये नॅशनल लेवलला. पण आता आमचं स्वप्न आहे, आमचं मी ह्या दृष्टीने म्हणतो की आय एम व्हेरी ग्लॅड टू गेट असोसिएटेड विथ भास्करजी सर. So I will give full of my experience, my knowledge, जे मला माहिती आहे ते सर्च करून तुम्हाला देण्याचा आणि जास्तीत जास्त तुम्हाला इम्प्रूव्ह करण्याचा. टू इम्प्रूव्ह युअर नॉलेज अँड एव्हरीथिंग. तुम्हाला प्रत्येक वर्णावर, प्रत्येक टेस्टला, ॲट एव्हरी टेस्ट आय विल लाईक टू वी वुड लाईक टू गिव्ह इन्स्पिरेशन टू यू. तर त्यामुळे यू आर ॲट व्हेरी राईट प्लेस. हे स्वप्न आपल्याला पूर्ण करायचं आहे बेटा. आणि त्यासाठी ही जागा अतिशय त्यांचं मी जस्ट लास्ट मंथ आय व्हिजिटेड अँड आय जस्ट वेन सॉ हिज डिजिटल क्लासरूम अँड ऑल. रिअली वंडरफुल सेटअप ही हॅज गॉट अँड यू आर रिअली लकी आय विल से. आणि मी लकी आहे की इट्स माय प्रिव्हिलेज, माझं भाग्य मी समजतो दॅट आय एम इन फ्रंट ऑफ सच टॅलेंटेड स्टुडंट्स. 12वीच्या विद्यार्थ्यांना मी आता शिकवायला सुरुवात केलेली आहे, परंतु त्यांना 11वी मध्ये सरांनी इतकं परफेक्ट केलेलं आहे that whenever I ask some back topic question there, जो त्यांनी 11वी शिकलेला आहे, instantly the chat start there and I get correct answers. मी मुलांना म्हणतो त्या दिवशी की मला खूप छान झोप लागते तुमची एवढी तयारी पाहून. And also that all credit goes to भास्करजी सर. ओके,
तर आपण ज्यावेळेस शिकवायला सुरुवात करतोय आता त्यावेळेला यू विल एक्सपिरियन्स एव्हरीथिंग. अँड लास्टली आय वुड लाईक टू गिव्ह यू अश्युरन्स, डोंट फील एनी जनरेशन गॅप. जनरेशन गॅप अजिबात मानू नका की सर, आणि विचारताना कुठल्याही प्रश्नाला संकोच करू नका. You can ask me any question in the difficulty doubt session, and also on my WhatsApp you can have that chat there, and if possible I will write, otherwise I will give audio clip for the answer till the satisfaction. Okay, त्याच्यापेक्षा मॅक्सिमम जास्त जे करता येईल ते मी करेल, कारण त्यात मला आनंद आहे. that I will get the joy for that. Okay, दर प्रत्येक दिवशी मला शांत आणि आनंदाची झोप लागावी, ते फक्त माझ्या विद्यार्थ्यांच्या हातात आहे तुमच्यासारख्या. that if you will perform well, that will be the best gift for me and best gift for Honorable Bhaskarji sir. Okay, thanks a lot for such a nice introduction sir again, and very soon we shall meet. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. तर हे आपलं भाग्य आहे की सर आपल्यासोबत आलेले आहेत आणि ते शिकवणार आहेत. तुम्हाला पण याचा खूप फायदा होईल. मी नेहमीच अप्रिशिएट करतो माझ्या जर्नीमध्ये. मी त्यांचं फक्त नाव ऐकलं होतं ज्यावेळेस मी प्रिपेअर करत होतो की काटे सर खूप छान बायोलॉजी शिकवतात आणि ऑल दॅट, आणि आज ते आपल्यासोबत शिकवत आहेत. याच्यापेक्षा जास्त आनंद दुसरा कुठलाच नाहीये. आणि सरांचं एक वाक्य तुम्ही जर नीट ऑब्झर्व केलं तर सर म्हणतायत की तुमचा परफॉर्मन्स जर बेटर असेल तर आम्हाला चांगली झोप लागेल. तुमच्यावर डिपेंडेंट आहे सगळा आमचा हॅपीनेस. तुम्ही सक्सेस झाला तर आम्ही हॅपी होऊ. हे करेक्ट करेक्ट साधं सुधं वाक्य नाहीये, लक्षात घ्या. आलं लक्षात? हे एक जो हाडामासाचा टीचर आहे, शिक्षक आहे, त्याच्याच तोंडातून हे वाक्य निघू शकतं की विद्यार्थ्याचं जर कल्याण झालं तरच आम्हाला आनंद आहे, किंवा तुम्ही जर बेटर परफॉर्म करायला लागले तर आम्हाला छान झोप लागेल. तुम्ही जर चांगलं परफॉर्म करणं झाले तर बोर होईल आम्हाला किंवा करमणार नाही. हे अतिशय महत्वाचं. हे मनातनं लागतं. हे म्हणजे वरवर बोलून चालणार नाही. त्यांनी हे एक्सपिरियन्स केलेला आहे 39 इयर्सचा, म्हणून ते सहज बोलू शकलेत. हे खूप महत्वाचं आहे. ह्याचा मिनिंग खूप डेप्थ लेवलला आहे. तुम्ही याचा समजून घ्या. आणि सरांच्या नॉलेजचा जस्ट इंटरेस्टिंग सर, जस्ट 12वी त्यावेळेस कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन नसायच्या, परंतु 12वी बोर्डचा रिझल्टचा दिवस म्हणजे माझ्या घरी एक सण असल्यासारखा असायचा. that so many students were coming there and showing their good marks. केमिस्ट्री 100 पैकी 100, बायोलॉजी 100 पैकी 100, फिजिक्स में 99, 299 चा बीजे मेडिकल कॉलेजचा हायेस्ट स्टुडंट माझा विद्यार्थी असल्याचा मला केवढा आनंद असायचा, केवढा गर्व असायचा. So that is a pleasure I want here from all you. तुम्ही जर 360 मार्क घेणारे आमच्या क्लासचे भरपूर विद्यार्थी निघाले बायोलॉजी मध्ये 360, तर त्याच्यासारखं परम सुख आम्हाला दुसरं काही नाहीये. That we are demanding you. Thank you. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तर सरांचे लेक्चर आपण सुरू करूया. एक ट्रॅक मी घेईल आणि काही टॉपिक आहेत, आपण त्याची लिस्ट तुम्हाला देईलच मी. सर घेतील, डाऊट्स होतील नंतर लेक्चर झाल्याच्या नंतर काही वेळासाठी. आणि याचा फायदा घ्या. एवढं मोठं नॉलेज आहे, नॉलेजचं भंडार तुमच्या समोर आहे, एवढा मोठा एक्सपिरियन्स आहे की काय आहे, नुसतं नॉलेज किंवा इन्फॉर्मेशनवर तुम्ही नीट नाही क्रॅक करू शकत. तुम्हाला ना मानसिक संतुलन असणं गरजेचं आहे, मेंटल स्टेबिलिटी. ओके, कुठलीही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम क्रॅक करायला. आणि सरांचा एवढा मोठा वास्ट एक्सपिरियन्स आहे. त्यांनी हजारो स्टुडंट बघितलेले आहेत, अप डाऊन झालेले, पुन्हा पडून उठलेले आणि परत पुन्हा जिंकलेले. तर तो जो एक्सपिरियन्स आहे त्याचा फायदा घ्या. आणि तुम्हाला जे मेडिकल कॉलेज पाहिजे, जे तुमचं ड्रीम मेडिकल कॉलेज आहे, सपोज एम्स न्यू दिल्ली आहे, तर तिथं जा. हेच मला सांगायचं ह्या ठिकाणी. थँक्यू सो मच सर, थँक्यू सो मच. ओके, थँक्यू सो मच. थँक्यू. मुलांचे कमेंट्स सर येत आहेत, तुम्ही वाचू शकताय. ओके ओके, थँक्यू सो मच. थँक्यू. ओके, चलो. सो लेट्स स्टार्ट. Now back to the topic. We are dealing with BFC, body fluid and circulation. Wow. We are dealing with दोस्तों body fluid and circulation. Okay. लाईन लागेल. यस, लाईनच लावायची आपल्याला 360 आउट ऑफ 360 ची. ओके, चलो. सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन.
Now दोस्तों, let's start our discussion with very important topic, and that is the blood vessels. Blood vessel. Do you know that in human being or in chordate there is a closed circulatory system? Okay, closed circulatory system का मतलब है that is a blood is flowing through the blood vessels. Blood is flowing through the blood vessels. That is a closed circulatory system. और ये जो ब्लड वेसल्स है दोस्तों, इस ब्लड वेसल्स के अलग अलग लेयर्स होते हैं. There are different layers of blood vessels. Now please pay attention. There are different layers of blood vessels. 3 लेयर होते हैं और 3 टाइप के ब्लड वेसल है. आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. ओके, 3 टाइप के ब्लड वेसल है. दीज आर दोस्तों आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. Say this. Wow. Okay. Now please pay attention. So we are dealing with दोस्तों blood vessel. We are dealing with topic blood vessel. और उसमें 3 टाइप के ब्लड वेसल है. That is artery, vein and capillaries. But there are layers of blood vessel. They are made up of different layer. Basically there are 3 type of layers present in blood vessels. खास करके आर्टरी और वेन्स में. ये है एनाटॉमी ऑफ वॉल ऑफ आर्टरी. तो दोस्तों 3 टाइप के लेयर्स होते हैं. दैट इज लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल. इससे शुरू करेंगे और फिर अलग अलग ब्लड वेसल के क्या क्या फीचर्स है इसके बारे में बात करेंगे. Now what is meant by vessels? Vessels means these are the container which carries the blood. इनका फंक्शन क्या है? To transport the blood from that is heart to the different organ and from different organ to the heart. ये उनका काम है. So 3 लेयर है, उनके नाम है दोस्तों. दैट इज जो इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका. ट्यूनिका मींस लेयर. ट्यूनिका इंटिमा. क्या नाम है? ट्यूनिका इंटिमा. और फिर दोस्तों दूसरा है जो मिडल लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका मीडिया. और जो आउटर लेयर है उसका नाम होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर एडवेंटिशिया. ट्यूनिका एक्सटर्ना इज द करेक्ट वर्ड हियर. एक्सटर्ना नाम में ही काम है. आप देखोगे नाम में ही लोकेशन है. ट्यूनिका इंटिमा ये मिडल लेयर है, सॉरी इनर मोस्ट लेयर होता है. ये जो आपको दिख रहा है ये है ल्यूमन. व्हाट इज दिस? ये है दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द ल्यूमन. एक कैविटी है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होने वाला है. और एक जो छोटा सा लेयर दिख रहा है आपको ये दिस वन, ये है दोस्तों दिस लेयर इज अ ट्यूनिका इंटिमा. ट्यूनिका इंटिमा. दिस इज एन इनर मोस्ट लेयर made up of दोस्तों a squamous epithelium, and the tunica intima of blood vessel is known as दोस्तों endothelium. the squamous epithelium से बना होता है. एनिमल टिश्यू में हम पढ़ेंगे squamous epithelium क्या है. फिर जो सबसे थिक लेयर है वो मिडल लेयर है, उसका नाम है ट्यूनिका मीडिया. एंड द ट्यूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल. ओके, स्मूथ मसल सेल. और बॉडी में हमारे बॉडी में 2 टाइप के फाइबर है ह्यूमन बॉडी में. एक होता है दोस्तों इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर, और दूसरा होता है कोलेजन फाइबर. हमेशा याद.
दो टाइप के फाइबर है। मोस्ट अबंडेंट फाइबर तो कोलेजन फाइबर है ह्यूमन बॉडी में। दो टाइप के फाइबर है, एक है इलास्टिक, जो इलास्टिक होते हैं, जो जैसे मान लो जो इलास्टिसिटी जैसे इस एयर, कुछ होते हैं कोलेजन फाइबर। तो ये जो ट्यूनिका मीडिया है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द स्मूथ मसल सेल्स। सीरीज ये जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, दीज आर द स्मूथ मसल सेल्स। ये जो लेयर है थोड़ा सा पिंकिश जो दिख रहा है, इट इज दोस्तों, this layer is a tunica media made up of smooth muscle cell and elastic fiber, and the outermost covering of blood vessel is called the tunica externa, और that is made up of दोस्तों fibrous connective tissue and collagen fiber। ये MCQ आने वाले हैं। नाउ फिर से जरा अलग 3D डायग्राम है। ये है नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ये है ट्यूनिका इंटीमा जो कि बना होता है दोस्तों स्क्वाइमस एपिथेलियम से। आप देख रहे हो, these are the squamous epithelial cells like this, पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं इसे, स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल है लाइक दिस, ये उनके न्यूक्लियस है देखो। सो ये जो है दोस्तों ट्यूनिका इंटीमा है। नाउ यहां पे भी आप देख सकते हो, सो दिस। नाउ फिर है दोस्तों ट्यूनिका मीडिया, फिर से मैं बोला हूं ट्यूनिका मीडिया, दिस वन मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल, और ट्यूनिका एक्सटर्ना fibrous connective tissue. So these are the layers of blood vessels. Layers of blood vessels. Now blood vessels क्या है दोस्तों? These are the, what are the blood vessels? What are the blood vessels? These are the container or the tube-like structure blood vessels which help in transport of blood. Okay दोस्तों, which help in transport of blood. These are the tube-like structures, और ट्यूब लाइक नहीं, ट्यूब तो छोटा हो गया, ट्यूब्यूलर, द करेक्ट वर्ड इज ट्यूब्यूलर एंड elongated स्ट्रक्चर है, elongated, ट्यूब्यूलर, elongated एंड hollow स्ट्रक्चर है, hollow structure which carries the blood, which help in transport of blood दोस्तों, which help in transport of blood. Okay, और there are 3 types of blood vessels. 3 types होते हैं, 3 types of blood vessel है हमारे बॉडी में, 3 types of blood vessel है दोस्तों basically. Number 1, that is artery. Now what is the definition of artery? Anyone from the class? Now what is the definition of artery? मैंने इससे पहले भी बोला था। What is the definition? Basement membrane एक non living layer होता है, okay, chemicals, biomolecules का, जिसके ऊपर ये स्क्वाइमस एपिथेलियम होता है, इसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, वो सेल का लेयर नहीं है, वहां कोई भी सेल नहीं है। ओके, उसके ऊपर वो एपिथेलियम होता है, उसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जसं बेसमेंट आपलं नसतं ना घरी तसं। Artery takes, what are the artery? तो artery are the blood vessel which carries the blood away from heart. MCQ. बहुत सारे लोगों को लगता है कि artery are the blood vessel which carries the oxygenated blood. गलत। Definition, correct definition is artery, blood vessels which carries blood away from the heart. Away from the heart, इसे कहते हैं दोस्तों away from the heart, इसे कहते हैं that is artery. Now what is meant by veins? इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। What is meant by veins? इसके opposite, these are the blood vessels which carries the blood towards the heart, which carries blood towards the heart. Towards the heart, that is called as दोस्तों veins. Now what is meant by capillary? Now capillary क्या है दोस्तों? किसे कहेंगे capillaries? याद रखो, किसे कहेंगे capillaries, ये important है। Okay, now capillary मतलब these are the blood vessel where exchange of
substances, exchange of nutrient or waste material occur. Exchange of substances between blood and tissue occur at a capillary level. Okay, the blood vessel. What are capillaries? MCQ आता है दोस्तों. Blood vessel. Capillaries are the blood vessels where exchange of substances like nutrient, waste material like gases, substances occurs between between blood and tissue. That is called as दोस्तों capillaries. That is called as capillaries. याद रखो, artery, vein and capillaries, type of blood vessel. Now ये जो होते हैं artery, यहाँ पे important है, artery and veins they have 3 layers and capillary has only 1 layer, that is a tunica media, sorry tunica intima. ये बहुत important है, बहुत important है दोस्तों. बात करेंगे that is the layers of blood vessel. Layers of blood vessel. Okay, layers of blood vessel. That artery and vein is made up of 3 layers. याद रखो, artery and veins, the wall of artery and veins, wall of arteries and veins made up of 3 different layer. Made up of दोस्तों, made up of 3 different layer. 3 different layer. From inner to outer. From, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, फ्रॉम इनर टू आउटर देखेंगे कौन से फ्रॉम इनर टू आउटर. और वो है दोस्तों नंबर 1 पे है, दैट इज फ्रॉम इनर नंबर 1 जिसका नाम है ट्यूनिका. ट्यूनिका मींस लेयर. ट्यूनिका इंटिमा. इंटिमा, ये जो ट्यूनिका इंटिमा है दोस्तों, इट इज एन इनर मोस्ट लेयर है. इनर मोस्ट लेयर, ट्यूनिका इंटिमा इनर मोस्ट लेयर और इनर लेयर है. ट्यूनिका इंटिमा इनर मोस्ट लेयर है. नाउ दिस ट्यूनिका इंटिमा इज मेड अप ऑफ दोस्तों स्क्वाइमस एपिथेलियम, एमसीक्यू, नोन एज एंडोथेलियम. ओके, जो ट्यूनिका इंटिमा है इट इज मेड अप ऑफ एमसीक्यू आएगा, दैट इज स्क्वाइमस एपिथेलियम. इसके सेल थोड़े फ्लैटेंड सेल होते हैं. स्क्वाइमस एपिथेलियम क्या होता है? एक लेयर है एपिथेलियल सेल का, और उसको बोला जाता है दोस्तों स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज एंडोथेलियम. एमसीक्यू, स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम. ये है ट्यूनिका इंटिमा. कैपिलरी में सिर्फ एक ही लेयर है, दैट इज द ट्यूनिका इंटिमा. कैपिलरी में ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना इज एब्सेंट, ओनली ट्यूनिका इंटिमा इज प्रेजेंट इन कैपिलरी. फिर जो दूसरा लेयर है दोस्तों मिडल लेयर, जिसका नाम है ट्यूनिका मतलब लेयर और ट्यूनिका मीडिया. ट्यूनिका मीडिया ये मिडल लेयर है. दिस इज एन मिडल लेयर ऑफ ब्लड वेसल. मिडल लेयर है. और दिस ट्यूनिका मीडिया इट इज मेड अप ऑफ दोस्तों smooth muscle cell and elastic fiber. MCQ, it is made up of दोस्तों, it is made up of that is smooth muscle cells and elastic fiber. कौन से टाइप के फाइबर है? इलास्टिक फाइबर. ये स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, किस लेयर का स्ट्रक्चर किससे बना है. और जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिकेस्ट लेयर होता है अमॉन्ग ऑल, थिकेस्ट अमॉन्ग ऑल 3 लेयर्स. अमॉन्ग्स ऑल 3 लेयर सबसे थिक है ट्यूनिका मीडिया. मोटा है, बड़ा है. ओके, बढ़िया है, मोटा है ट्यूनिका मीडिया. और ये जो ट्यूनिका मीडिया है एक्चुअल देखा जाए तो इट इज थिक इन आर्टरीज एज कंपेयर टू वेन. ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली दोस्तों वेन में थिन होता है देन द आर्टरीज. ये थिकेस्ट है सबसे अगर देखा जाए. पर यहां पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लिखता हूं दैट ट्यूनिका मीडिया जो है ट्यूनिक, या फिर दूसरा बाद में लिखते हैं, दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना. नंबर 3 पे आएगा ट्यूनिका
एक्सटर्ना या फिर एडवेंटिसिया भी कुछ लोग इसे बोलते हैं, पर द करेक्ट वर्ड इज एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना ये आउटर मोस्ट लेयर है। ट्यूनिका एक्सटर्ना इज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल। तो दोस्तों एंड इट इज मेड अप ऑफ, ये सब आने वाले एमसीक्यू, इट इज मेड अप ऑफ दैट इज फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू एंड व्हिच फाइबर, कोलेजन फाइबर। ओके लक्ष्य था, इट इज मेड अप ऑफ, ये एमसीक्यू है दोस्तों, इट इज मेड अप ऑफ fibrous connective tissue, fibrous connective tissue, CT, fibrous connective tissue, and it is made up of fibrous connective tissue and that is collagen fiber. किस लेयर में कौन से फाइबर है ये हमें पता होना चाहिए। ओके तो याद रखो सी याद रखो, 2C 2C याद रखेंगे किसके लिए, फॉर ट्यूनिका एक्सटर्ना के लिए इट इज मेड अप ऑफ, पहला सी है कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा सी है कोलेजन फाइबर। 2C कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर। इज दैट क्लियर, ये क्लियर है। लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल की बात कर रहे हैं, लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल। क्वेश्चन कैसा आएगा, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। क्वेश्चन कैसा आएगा, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, इस तरह का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। किस लेयर किस स्ट्रक्चर से बना हुआ है, या फिर कौन सा लेयर क्या है, किधर है, इनर कौन सा है, मिडल कौन सा है, आउटर कौन सा है। नाम से तो ये समझ में आएगा कि इनर आउटर और मिडल कौन से है, इनर मिडल और आउटर कौन से है, बट किस लेयर किस स्ट्रक्चर से बना है ये आपको पता होना चाहिए। ट्यूनिका इंटिमा स्क्वामस एपिथेलियम नोन एज एंडोथेलियम, ट्यूनिका मीडिया, ये मीडिया है तो मसल से बना है दोस्त। ये जो मीडिया है तो किससे बना है, मसल, और मसल जो होते हैं वो स्मूथ मसल सेल्स है। देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, दैट इज स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स। तो ये मसल सेल जो मीडिया है वो मसल सेल से बना है, और मसल सेल कौन सा है, दैट इज स्मूथ मसल। याद रखेंगे दैट इज 2M, यहाँ पे 2M मीन्स मीडिया इज मेड अप ऑफ दोस्तों, ट्यूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ मसल सेल, याद रखो। और ट्यूनिका इंटिमा एंडो, इनर साइड का, एंडो मीन्स इनर, एक्टो मीन्स आउटर, तो एंडोथेलियम से बना होता है ट्यूनिका इंटिमा। इज दैट क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इज दैट क्लियर, ओके। तो दीज आर द लेयर्स, फिर से एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेयर है दैट इज ये ल्यूमन है, दिस इज ल्यूमन, जो ओपनिंग होती है अंदर उसे कहते हैं ल्यूमन। ट्यूनिका मीडिया सबसे थिन है, ट्यूनिका इंटिमा सबसे थिन है, ट्यूनिका मीडिया और फिर दोस्तों सबसे थिक है ट्यूनिका एक्सटर्ना, यही है। फिर ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना, और उसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। नाउ प्लीज पे अटेंशन, आई फॉर इंटिमा, आई फॉर इनर मोस्ट, बहुत बढ़िया मौसमी, ये सोचने के लिए, ये आपके दिमाग में आया, इसके लिए कांग्रेट्स बहुत ही बढ़िया। यम फॉर मीडिया, यम फॉर मिडल, क्या बात है, क्या बात है। ट्यूनिका मीन्स लेयर, द मीनिंग ऑफ टर्म ट्यूनिका मीन्स कवरिंग, और लेयर, द मीनिंग ऑफ टर्म ट्यूनिका का मतलब होता है दोस्तों लेयर्स, या फिर कवरिंग, या फिर कवर, कवरिंग, या फिर लेयर्स, उसे कहते हैं ट्यूनिका। इज दैट क्लियर, आगे चलते हैं, ओके ओके। ट्यूनिका मैंने बोल दिया है, ट्यूनिका का मतलब है दैट इज कवरिंग और लेयर। ये होते हैं दोस्तों ब्लड वेसल्स। नाउ आपके सिलेबस में एक डायग्राम है, पेज नंबर, ओके, दैट इज स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन, स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। नाउ ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है,
this one. Now please pay attention. तो एक्चुअली दिस इज अबाउट द डबल सर्कुलेशन, पर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ये तीन जो सभी लोग क्या करते हैं, ये जो डायग्राम देखते हैं 18.4, तो हर किसी का फोकस ये ऊपर वाले डायग्राम के ऊपर है, ये जो बड़ी डायग्राम है इसके ऊपर है, ये जो डबल सर्कुलेशन है दोस्तों इसके ऊपर होता है। ये है डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट, मैं बाद में बताऊंगा। ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, इसे कहते हैं दोस्तों पल्मोनरी सर्कुलेशन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। हमें डबल सर्कुलेशन है, और नीचे दोस्तों दैट इज अ सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड टिश्यू बॉडी पार्ट, इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ऐसे दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं दोस्तों, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन और ऊपर वाला है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रेजेंट बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट, ये तो आने वाला है। नाउ यहाँ पे जो वेसल्स दिए हैं इसके ऊपर फोकस करो। नाउ दोस्तों ये है आर्टरी, आपके बुक में देखो ये है आर्टरी। नाउ आर्टरी का ये ल्यूमन दिया है, ये जो दिख रहा है आपको ये व्हाइट कलर वाला, ये है ल्यूमन, और एक छोटा सा लेयर दिया है दोस्तों। सपोज मान लो ये वाला, दिस लेयर इज ट्यूनिका इंटीमा, ये जो लेयर दिया है दैट इज अ ट्यूनिका इंटीमा। और फिर बड़ा सा थिक लेयर है स्मूथ मसल का, वो है दोस्तों दैट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिका, ये लेयर है ट्यूनिका मीडिया। और जो येलो कलर का लेयर है दैट इज अ ट्यूनिका एक्सटर्ना है। ये दोस्तों ये जो लेयर है दैट इज अ ट्यूनिका एक्सटर्ना है। दिस वन इज द ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना। नाउ ये जो लेयर है दैट इज अ ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, मीडिया। और ये जो लेयर दिया है ये है दोस्तों दैट इज ट्यूनिका मींस लेयर इंटीमा, इंटीमा। और आप जरा फोकस होके देखोगे तो ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टरी इज थिक एज कंपेयर टू वेन। आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, दिख रहा है क्या? ट्यूनिका मीडिया जो है आर्टरी का वो थिक है एज कंपेयर टू ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टरी थिक है एज कंपेयर टू वेन। और थीन का वेन का ट्यूनिका मीडिया जो है, जो वेन्स है उनका ट्यूनिका मीडिया दोस्तों जरा थीन है। मान लो ये है ट्यूनिका इंटीमा। यस और नो बोलो, यस और नो। थिकनेस ऑफ ट्यूनिका मीडिया के ऊपर फोकस करो। थिकनेस ऑफ ट्यूनिका मीडिया, किसका थीन और किसका थिक है, ये एमसीक्यू आएगा। वेन का क्या है दोस्तों? वेन में ये जो लेयर है वेन है, ओके। वेन के बारे में दो लाइनें यहां पे लिखता हूं, दैट इज वेन के बारे में दोस्तों दो लाइनें। इट हैव कंपैरेटिवली थीन ट्यूनिका मीडिया। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? कंपैरेटिवली थीन ट्यूनिका मीडिया है और कंपैरेटिवली लार्ज ल्यूमन है। कंपैरेटिवली और एक है कंपैरेटिवली किसके साथ? आर्टरी के साथ अगर कंपैरिजन किया तो कंपैरेटिवली दोस्तों the vein have large lumen। ल्यूमन की साइज देखो, ये जो व्हाइट पैच दिख रहा है ये लार्ज है, यहाँ पे छोटा है। ल्यूमन बड़ा होता है वेन्स का व्हेन वी कंपेयर द आर्टरी। समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये कहीं पे नहीं है मेंशन, ये थोड़ा एक लाइन है एनसीईआरटी में, पर ये डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू आ सकता है। ये डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू आता है। यस और नो? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नाउ दोस्तों ये क्या है? ये है कैपिलरी भाई। ये क्या है दोस्तों? ये है कैपिलरी, ये है कैपिलरी। नाउ ये जो लेयर आपको दिख रहा है, ये जो लेयर आपको दिख रहा है दोस्तों कैपिलरी का, ये जो कौन से सेल है? दीज आर द स्क्वाइमस सेल। कौन से सेल है? दीज आर द स्क्वाइमस इपिथेलियल सेल है।
These are the squamous epithelial cells. See this, flattened cells होते हैं squamous epithelial cells. ये squamous epithelial cells है दोस्तों, squamous epithelial cells. Okay, now ये है squamous epithelial cells और इसे कहते हैं एंडोथेलियम. इस लेयर का नाम क्या है? एंडोथेलियम. और ये क्या है? उनका न्यूक्लियस है. What is this? ये है उनका न्यूक्लियस. ये है उनका न्यूक्लियस. समझ में आ रहा है? यस और नो? सो ये क्या है दोस्तों? ये है दैट इज अ कैपिलरी. और कैपिलरी में क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ ओनली, क्या है दोस्तों? एंडोथेलियम. और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल इज मेड अप ऑफ, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल इज मेड अप ऑफ व्हिच टाइप ऑफ एपिथेलियम? ये क्वेश्चन आता है. एंडोथेलियम इज व्हिच टाइप ऑफ एपिथेलियम? ओके, बस यही लेते हैं, रुकते हैं. स्क्वायमस एपिथेलियम. स्क्वायमस एपिथेलियम, 2 लाइनें बोलना है मुझे. स्क्वायमस एपिथेलियम, याद रखो. सिंगल लेयर्ड होता है कैपिलरी. एमसीक्यू. दैट्स व्हाई इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों हो रहा है? क्योंकि लेयर ही एक है, इसलिए एक साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है? कैपिलरी. आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ में आ रहा है? तो 2 चीजें यहाँ पे है. हम तो डिफरेंस देखेंगे आर्टरी और वेन में. तो याद रखो, कैपिलरी इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर एंड दैट इज ट्यूनिका इंटीमा. कैपिलरी इज मेड अप ऑफ, एक लाइन लिखता हूं कहीं तो भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों. दैट इज, नोट यहां पे लिखो, नोट. दैट इज कैपिलरी कंटेन, कैपिलरी मेड अप ऑफ only single layer, only single layer, that is दोस्तों endothelium. Endothelium, that's why it is the site of exchange of material between the blood and the tissue. आज के लिए बस इतना ही. कल बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में, परसों रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ऑल दैट. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी. व्हाट इज मीन बाय थेलियम? थेलियम कहां पे पढ़ा बेटा आपने? थेलियम कैपिलरीज में एक ही लेयर होता है. कैपिलरीज में एक ही लेयर है, दैट इज एंडोथेलियम. और दीज आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. Generally, artery carries oxygenated blood except pulmonary artery which carries deoxygenated blood, and generally veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein which carries oxygenated blood. कल बात करेंगे इसके बारे में. ठीक है, what are the olfactory lobe in Pisces? बेटा आयुष, you are on a ये actually you are on a रॉन्ग रिसोर्सेस से आप पढ़ रहे हो. ओके, इसलिए आपके मार्क्स बेटा कम आ रहे हैं. ऑल्फैक्टरी लोब्स, फिर भी बोलता हूं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, दीज आर द साइट और दीज आर द एरियाज प्रेजेंट इन द ब्रेन व्हिच इज सेंसिटिव टू स्मेल. ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल के लिए काम करते हैं. ये आपने कहां से पढ़ा है? स्टेट बोर्ड से पढ़ा है क्या? ऑल्फैक्टरी लोब्स दे आर सेंसिटिव टू स्मेल. ब्रेन में एक एरिया है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर भी होता है दोस्तों. दे आर सेंसिटिव टू स्मेल. स्मेल रिकॉग्नाइज करने में मदद करते हैं. ओके, यस, काटे सर आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चों. प्लीज अपलोड यस्टरडे लेक्चर. ओके, लास्ट फिगर एक बार फिर से बताओ. लास्ट फिगर कल बात करने वाले इसके बारे में दोस्तों. ये जो फिगर है, ये है आर्टरी, ये है वेन और ये है कैपिलरीज. और ये तो कल बात करेंगे. डबल सर्कुलेशन की फिगर है. पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट इज अ सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स.
तो ये दो टाइप का सर्कुलेशन होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ये याद रखो। नाउ शैल आई स्टॉप रीडिंग स्टेट बोर्ड बुक? नहीं, पढ़ सकते हो बेटा, कोई बात नहीं, नहीं 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 पढ़ना है आयुष। ये स्टेट बोर्ड से है क्या? ये स्टेट बोर्ड से है क्या? तो यस, पढ़ो, जरूर पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वहां पे जो क्लैरिटी है ना, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो, मैं डाउट आपको बताते जाऊंगा, आपके क्लियर करते जाऊंगा। ऑल्फैक्टरी लोब बेटा, इट इज एरिया इन अ ब्रेन, एक लोब होता है छोटा सा, दैट इज सेंसिटिव टू स्मेल, इतना ही याद रखो, पढ़ते जाओ। स्टेट बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वहां पे अंडरस्टँडिंग बहुत ही ज्यादा है, पर एनसीईआरटी को इग्नोर करके मत पढ़ो, ठीक आहे। माझ्या एक फ्रेंडला तुमच्याकडे क्लास लावणे आहे, पण फीस खूप जास्त आहे। बर, बर 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 मयूर बेटा, त्याला मला फोन करायला सांगा। ओके, हा मला कॉल करायला सांगा, माझा नंबर द्या त्याला, काय नाव आहे त्याचं? ओके, हाँ होने वाले हैं। थेलियम ऑफ एंडोथेलियम, नहीं नहीं ये पता नहीं बेटा, थेलियम ऑफ एंडोथेलियम ऐसा कुछ शब्द नहीं है। ओके, एंडोथेलियम एक प्रॉपर शब्द है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन, ये मैं ईसीजी जब बात करेंगे तब बताऊंगा। काय समजतं निगेटिव्ह वेव्स म्हणजे असं काही नाही, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह वेव्स, अप्पर वेव्सला पॉझिटिव्ह वेव्स म्हणतात आणि जे खालच्या साईडला येतात बेसलाईनचे त्याला निगेटिव्ह वेव्स म्हणतात। एसटी सेगमेंट एलिव्हेशन म्हणजे काय असतं तुम्हाला 2 मिनिटं समजून सांगतो वाटल्यास तर, जस्ट वेट। एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई मध्ये होत असतं। नाउ प्लीज पे अटेंशन, मैं आपको समझाता हूँ एसटी सेगमेंट एलिवेशन क्या होता है। नाउ प्लीज पे अटेंशन दोस्तों, सपोज मान लो ये है नॉर्मल ईसीजी, कुछ इस तरीके से, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, यस, और ये हो गया टी वेव, दिस इज एन टी वेव। तो पी वेव है ये, पी वेव कुछ इस तरह के आता है, पी क्यू आर एस टी। नाउ ये जो सेगमेंट है इसे कहा जाता है एसटी सेगमेंट, ये जो इतना सेगमेंट है इसे कहा जाता है एसटी सेगमेंट, ये वाला। तो किस, ये नॉर्मल ईसीजी है, दिस इज अ नॉर्मल ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी। नाउ एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई होता है, उसे कहते हैं स्टेमी, स्टेमी कहते हैं, स्टेमी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो यहां पे क्या है दोस्तों, सिनेरियो कुछ ऐसा है, मान लो ये है पी वेव, क्यू वेव, सपोज आर वेव, और ये जो एसटी सेगमेंट, ये जो एसटी सेगमेंट है ये थोड़ा सा ऐसा एलिवेटेड होता है, लाइक दिस, लाइक दिस, इससे कहते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन, इसे कहते हैं दोस्तों एसटी सेगमेंट एलिवेशन। ये जो ये एस वेव है और ये सपोज मान लो यहाँ पे टी वेव है, तो इसे कहते हैं पी क्यू आर एस और टी। तो यहाँ पे एसटी सेगमेंट थोड़ा सा ऊपर गया है, तो इसे कहते हैं दोस्तों एसटी सेगमेंट एलिवेशन। ये एक मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में होता है, इसे कहते हैं स्टेमी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है। ये शब्द बहुत फेमस है, एसटी सेगमेंट, ये ऊपर चला गया है बेस लाइन से, सो इसे कहते हैं दोस्तों स्टेमी। स्टेमी मींस एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। स्टेमी का मतलब होता है एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट, सेगमेंट एलिवेटेड, एलिवेटेड मींस ऊपर चला गया है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एसटी सेगमेंटेड एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो ये होता है एसटी सेगमेंट एमआई, समझे सर? व्हाई आर्टरीज मिडल ईयर इज बिग कंपेयर टू वेन, बात करेंगे ना वैभव। आर्टरी हैज टू कैरी द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट, और ब्लड जो प्रेशर होता है आर्टरी में वो ज्यादा होता है, जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर है आर्टरी में वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली वेन, इसलिए तो इलास्टिक टिश्यू भी ज्यादा होने चाहिए, बात भी करेंगे, और मसल स्मूथ मसल सेल है वो भी थिक होना चाहिए, इसलिए मिडल ईयर थिक है, प्रेशर से ब्लड कैरी करते हैं।
सर मी एक व्हॉट्सअपवर क्वेश्चन पाठवला आहे, डाऊट आहे, वेळ असेल तर बघा. विजया, बर लगेच पाठवलं का आता? ठीक आहे, हाँ ठीक है. मेटाजेनेसिस रेफर टू, मेटाजेनेसिस मीन्स दोस्तों यहाँ पे क्या होता है मेटाजेनेसिस में, ओबेलिया पोयम, उसमें मेटाजेनेसिस है. मीन्स दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन बॉडी फॉर्म इनटू अनदर बॉडी फॉर्म, occurrence of drastic changes in the form during embryonic development, presence of segmented body nahi, presence of different morphic form, alternation of generation between sexual, asexual and sexual phase of organism, presence of different morphic form. So alternation of generation between sexual and asexual and sexual phase of organism, metagenesis refer to. D1 is the correct यहाँ पे, alternation of generation between sexual, asexual and sexual phase of morphic form or sorry organism और presence of different morphic form. C भी थोड़ा accurate है पर more accurate D होना चाहिए. मेटाजेनेसिस एक प्रोसेस है. ओके, कोणाच तरी कॅमेरा सुरू झालाय, आता काय करावं त्याला, काय करणार आहे त्याला? बंद कर रे बाबा, बंद कर कॅमेरा, ए बंद करून टाक. सर मी MCQ पाठवला आहे, प्लीज चेक. तर लक्षात ठेवा, बर याचा आन्सर डी पाहिजे बेटा. विजया, याचा आन्सर डी पाहिजे. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल अँड asexual and sexual phase of organism and presence of different morphic form. तरी पण एकदा ॲक्युरेट सांगतो काय आहे या दोन्ही पैकी. श्रीकांत, श्रीकांत काय म्हणतात? MCQ which of the following statement are incorrect. बरं ठीक आहे, ते बघतो मी. MCQ ऑफ द डे पाठवलंय का? काटे सर विल टीच विच चॅप्टर अँड फ्रॉम व्हेन? काटे सर मॉर्फोलॉजी पासून सुरुवात करतील, मॉर्फोलॉजी पासून. ठीक आहे, एक आपला टॉपिक कंप्लीट झाल्याच्या नंतर त्यांना देऊया एक टॉपिक आपण, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. व्हाट इज मीन बाय क्वाटरनरी प्रोटीन? क्वाटरनरी प्रोटीन जिसमें 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है. हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन. जिसमें 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उसे कहते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन. बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे. प्राइमरी ये स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी. एग्जाम्पल उसका हीमोग्लोबिन है. सर मी पण क्वेश्चन सेंड केला आहे, प्लीज डाऊट सांगा मला, डाऊट असेल तर. सौरभ, ओके. अरे हे ओळखू येत नाही. Which of the following statement is correct with respect to the principle of safe blood transfusion? Okay. Donor's red blood corpuscle should not contain antibodies against the recipient serum. Which one of the following statement is correct with respect to principle of safe blood transfusion? बर, आता तुला बेसिक गोष्ट माहित पाहिजे की डिस्ट्रॉय काय होते. तो डोनर्स ब्लड RBC corpuscle should not contain antibodies against the serum, recipient serum. Okay. The recipient serum should not contain antigen against the donor's antibody. Recipient serum should not contain the antibodies against the red blood cell of donor. C is the answer. Recipient RBC should not contain antibodies against the donor's antigen. Recipient blood RBC, recipient's RBC. C is the correct answer इसका बेटा, C is the correct answer. दूसरा है detection of blood group is done by agglutination test using antiserum. According to this method, if the blood show coagulation with, according to this method, if the blood shows coagulation with, ये जरा व्यवस्थित वाचता येत नाही, कटलेले क्वेश्चन छान आहेत दोन्ही पण. सर मी पण डाऊट पाठवले आहे 2-3 डेज बॅक मध्ये. एक मिनिट आयुष घेतो.
एकदम लास्टला एक पाठवलंय का? तो समजला का सर? डाऊट आता आलाय का? ठीक आहे, थांब. फोटो जरा नीट काढा. इन ईसीजी पी आर इंटरवल करस्पॉन्ड टू. पी आर इंटरवल म्हणजे काय असतं? टाइम, हे एवढ्या लेवलचं जाऊ नका, हे एमबीबीएस लेवलचे क्वेश्चन झाले. टाइम डिले इन एव्ही नोड, एसए नोड nodal conduction time, increased ventricular contraction or time interval between onset of ventricular contraction. PR interval काय असतं लक्षात ठेवा. लेक्चर चालू झालेलं का? ए कोण आहे हे चैतन्य? कोण आहे बेटा? कोणाचं लेक्चर चालू झालंय? कुठलं लेक्चर आहे तुझं? सांगू शकतो तुम्हाला? हे लेक्चर कुठलं आहे? हे चुकीच्या टायमिंगला लेक्चर आहे. तुझे चैतन्य तुपे कुठलं लेक्चर आहे बेटा? हे C3चं लेक्चर कसं काय चालू झालं? केमिस्ट्रीचं ते 10:30 लेक्चर आहे ना? साडे झालं, मग कसं काय चालू झालं म्हणतो तू? चैतन्य बेटा तुझा कुठला क्लास आहे? चैतन्य बेटा तुझा कुठला क्लास आहे? चलो ठीक आहे. पर्सन हु आर इम्युनाइज्ड विथ द वॅक्सिन. बर, काय प्रश्न विचारलाय सर? डाऊट. ऍज पर द गाइडलाइन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिकमेंडेड फॉर ब्लड डोनेशन? ओके. पीपल नॉट in good health under the influence of alcohol or drug. Which one of the following person is recommended for blood donation? Ladies during menstruation, pregnancy and breastfeeding, healthy woman but unwedding and below the age of 35, person who are immunized with live vaccines. अरे ये कहाँ का क्वेश्चन है बेटा सृष्टि? अनवेड एंड बिलो द एज ऑफ 35. सी इज द आंसर हो जाएगा उसका. सी विल बी द आंसर इसका. What will happen to the auricular ventricular nodes during ST segment elevation? वेदांश, कोई भी पार्ट जहां पे भी अफेक्ट हुआ है, चाहे वो वेंट्रिकल अफेक्ट हुआ है या ऑरिकल, वो उतना पार्ट काम नहीं करेगा. ये हम डिटेल में जानेंगे डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में. ये सब है हम डिटेल में जानेंगे डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में.
ओके कि एग्जैक्ट हार्ट अटैक में होता क्या है. ओके ठीक आहे, तुमचा लेक्चर सुरू झाला असेल. FIB मीन्स फॉलोड बाय आहे तो. FIB मीन्स आवाज येत नाही आहे सर. FIB मीन्स फॉलोड बाय. बर, हा वेगळी नोटबुक बनवावं लागेल. ठीक आहे, प्लीज क्लिअर माय डाउट्स. आय पोस्टेड ऑन व्हॉट्सअप. आयुष, ओके वेट. हा आत्ता पाठवलं का बेटा? आत्ता पाठवलंय का? कॅपिलरीज मध्ये फक्त ट्युनिका इंटिमाच आहे. कॅपिलरी कंटेन ओनली ट्युनिका इंटिमा. सौंदर्य ढेपळे, व्हिडिओ बंद करा बेटा. ओके बघतो बेटा. सृष्टी आन्सर डी दिलाय तर बघतो त्याचं. ठीक आहे सर. का डाऊट काय काय डाऊट आहे? एक मिनिट. हा what would be the heart rate of person if the cardiac output is 5 ml, blood volume in the ventricle at the end of diastole is 100 ml and the end of ventricular systole is 50 ml. आहे का वेळ तुमच्याकडे? हे डाऊट सॉल्व्ह करतो मी. काय प्रॉब्लेम नाही चैतन्य. एक मिनिट. हा एट्रियल फिब्रिलेशन मीन्स, एट्रियल फिब्रिलेशन मीन्स आर्टरी नहीं होता है, वो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है. आर्टरी नहीं, एट्रियल फिब्रिलेशन. नॉर्मली एट्रिया ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, पर अगर वो लाइक दिस ऐसा हो रहा है, थरथर थरथर कांपने लग रहा है एट्रिया, तो इसे कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन. ओके, लाइक दिस ऐसा हो रहा है. नॉर्मली ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और कुछ ऐसा हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज एट्रियल फिब्रिलेशन. दैट इज नेम्ड एज एट्रियल फिब्रिलेशन. समझे? ओके बर. एक खूप छान क्वेश्चन पाठवलेला आहे, मी त्याला घेतो. एकच मिनिट थांबा. क्वेश्चन खूप बढिया आहे, किंवा याला उद्या घेतो बेटा. कोणाचा क्वेश्चन आहे हा? खूपच बढिया आहे. दॅट इज नाव काय? 9359 शेवटी 3510. काय नाव आहे? मी नंबर पण सेव्ह करून घेतो. वैष्णवी, खूप छान आहे. वैष्णवी, हा क्वेश्चन उद्याच्याला प्रॉपर वे न त्याला समजून सांगावं लागेल. माझ्या त्याला हे करून ठेवतो. ठीक आहे, चल. बर ठीक आहे, एक डाऊट सेशन ठेवूया आपण. हे जे लेक्चर आहे जवळपास जरा 8:45 करूया, किंवा एक प्रॉपर डाऊट सेशन ठेवूया, त्याच्यामध्ये तुमचे डाऊट्स क्लिअर होतील. ठीक आहे. थोडं डाऊट्स क्लिअर होत नाहीत, त्यामुळे ते प्रॉब्लेम येणार नाही तुम्हाला कुठल्याही ह्याला. ठीक आहे, चलो. पीडीएफ लगेच सेंड करतो. जस्ट वेट. पाठवले बघा. ओके आयुष सर, means 4 ion molecule are present
in hemoglobin these 4 molecules have different name like ferritin and porphyrin? नहीं, नहीं, ये अलग, फेरिटिन और पोरफिरिन ये अलग अलग नेम नहीं है बेटा। 4 आयरन मॉलिक्यूल है, उनके नाम है आयरन मॉलिक्यूल। पर अगर वो हीमोग्लोबिन, ये फेरिटिन एंड पोरफिरिन, फेरिटिन जब आयरन स्टोर होता है हमारे बॉडी के अंदर तब उसे फेरिटिन बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम नहीं है, एक ही नाम है, दैट इज पोरफिरिन, याद रखो। नंबर 2, also in state board book it is mentioned serous pericardium is divided into parietal and visceral layer and do not the pericardium layer। वही है बेटा सीरस पेरिकार्डियम, मैंने सिर्फ पेरिकार्डियम बोला था, कोई लोग उसे सीरस पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसके 2 पार्ट है, दैट इज पैराइटल एंड विसरल। तो ये याद रखो, कोई लोग उसे सीरस पेरिकार्डियम बोलते हैं, बट उसके पेरिकार्डियम के 2 लेयर है, आउटर इज द पैराइटल एंड इनर इज द विसरल। इट इज गिवन दैट पेरिकार्डियम इज डिवाइडेड इनटू आउटर फायबरस एंड इनर सीरस पेरिकार्डियम। त्यांनी आता असं डिव्हिजन केलेलं आहे, लक्षात ठेवा, मी सांगतो बेसिकली, पण तुम्ही ते खूप डेप्थ मध्ये झालं, आता मी हे बंद केलंय, ते खूप डेप्थ मध्ये झालं। पेरिकार्डियमचे 2 फायबरस आणि सिरस, आणि परत सिरसचे 2 दॅट इज परायटल आणि व्हिसरस, असं केलेलं आहे। पण मी जे सांगितलं तेवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी चालतंय। आपल्या लेवलला, ह्या लेवलला बेटा ते सत्य आहे, ते खरं आहे, पण ह्या लेवलला पेरिकार्डियमचे 2 लेयर आहेत, दॅट इज परायटल पेरिकार्डियम आणि व्हिसरल पेरिकार्डियम, हे लक्षात ठेवा। आयुष बेटा समजतंय? सध्या ह्या लेवलला तुम्ही तेच लक्षात ठेवा की 2च लेयर आहेत पेरिकार्डियमचे, परायटल आणि व्हिसरल, ठीक आहे। एक्स्ट्रा माहिती असलं तर लक्षात ठेवा, खरं तर पेरिकार्डियम, सिरस आणि फायबरस मध्ये परायटल आणि व्हिसरल, पण बेसिकली मी जे सांगतो तसं लक्षात ठेवा, एकच पेरिकार्डियम, आउटर परायटल, इनर व्हिसरल। पुढचं सर बट इन नोट्स इवन, मग ते झालं, प्लीज क्लिअर माय डाऊट। क्लिअर आहे का आयुष बेटा, क्लिअर आहे का? व्हाट आर कॉलम, आता ह्याचे डायग्राम दाखवले पाहिजेत। कॉलमिनी कॉर्नी क्या होता है, ये जो पैपिलरी मसल्स है, कॉर्डा टेंडेनी और पैपिलरी मसल, वहां पे एक स्ट्रक्चर है बेटा, ओके जस्ट वेट। ये जो कॉलमिनी कॉर्नी होते हैं ना, दीज आर द पैपिलरी मसल्स के ही रीज है। मान लो ये है पैपिलरी मसल और इसके ऐसे रीज है, उसे कहते हैं कॉलमिनी कॉर्नी। ये डायग्राम कल मैं ये बताऊंगा कि ये दिखते कैसे हैं, ओके। कॉलमिनी कॉर्नी दिखते कैसे, पैपिलरी मसल के ही एलिवेटेड रीज है, प्रोजेक्शन है, जिसको कॉर्डा टेंडेनी अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज कॉलमिनी कॉर्नी। कल बताता हूं आयुष बेटा। They work similar to villi in intestine. Yes, villi जैसा वर्क नहीं, उनका villi का मेन फंक्शन है, it increases surface area of absorption, the main function of villi। यहाँ पे absorption का इतना ज्यादा रोल नहीं है, पर कुछ ऐसे लेयर होते हैं। मान लो सपोज मेरा हाथ पैपिलरी मसल है, सो नाउ दीज आर द कॉलमिनी कॉर्नी, और इसके साथ ऊपर से अटैच होते हैं कौन, दैट इज कॉर्डा टेंडेनी, उसके साथ ऊपर से अटैच हो रहे कॉर्डा टेंडेनी, ऐसा कॉन्सेप्ट है। फंक्शन विलाय जैसा नहीं है, विलाय जैसा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप। थैंक यू ओके थैंक यू। अल्फा बीटा चेन होते हैं, बर पीडीएफ सेंड केले आयुष बेटा, कळते का, समझ में आ रहा है, यस और नो? ओके, कल इसका फिर से एक क्वेश्चन पूछो, कल इसका फिर से मैं आंसर करूंगा, ठीक है। थैंक यू।